इफ़ वी टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन बिकॉज़ ये आजकल का बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, लोग इसी के बारे में आजकल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली मैनिफेस्टेशन, इसका मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या है? So, manifestation is about how your thoughts, if I talk about energy, जो हमारी thoughts होते हैं, they carry particular vibration. So, the moment you put a word try, it's like you're putting something very hard work in it. So, manifestation is not about hard work or an effort. Manifestation has to be a flow. क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। Welcome to another episode of TVT. Today we are here with a special guest who is a certified life coach, a therapist, and a sound healer. So, in this segment, we will get to know her insights and a unique approach to healing. So, let's welcome our honor of guest, Miss Megha ma'am. Hi, thank you so much, Niharika, for inviting me here. And it's an honor to be on your podcast and discussing about whatever people are looking for. So, Megha ma'am, as we know that you're a life coach, a therapist, and a sound healer. So, I would like to know कि basically आपने अपनी journey कैसे start करी? So, Niharika, I think I was meant to be here in this journey. Some of our friends forced us. There was this some event happening, and they forcefully took me there. And that was the first time when I saw my mentor, my coach. And that's how my journey started with my husband. They forced us, why don't you go meet her? Then she invited us to one of her graduation program. And that's how my journey started. And when people came on the stage and they're like, Hamari zindagi aise badal gayi, this is what happened in my life. They are all transformed. Their families came on the stage and they were acknowledging what work they have done. That was quite surprising for me. कि यार हमारी तो जिंदगी अच्छी चल रही थी, but what next they have done जो इतना बदलाव आया है इनकी लाइफ में. That pushed me against my limits. I said, I told my husband, इस बार vacation कम कर देंगे, will not buy bags, will not do some luxury stuff. Yeah. Let's go and try this journey. And that's how the entire journey started. Great. And it's been more than 9-10 years now. Wow. We started this journey. So, Megha ma'am, if we talk about manifestation, because ये आजकल का बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, लोग इसी के बारे में आजकल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि what is actually manifestation, इसका मतलब actual meaning क्या है? So manifestation is about how your thoughts, how your energy, how your intention, your emotions को हम एक physical reality में जब उसको ब्यूटिफाई करते हैं, उसको bring into the reality, that's called manifestation. So manifestation is not about something wishful thinking. Manifestation is more about aligning your inner world with your thoughts, with your emotions and your intentions and your beliefs. Okay. So that's how, and जैसे आपने बोला, how does it, and in spirituality, it's much more when you work on your inner world. Yeah. In spiritual realm, we talk about manifestation, it beautifies it. Because when you meet your inner higher self, how can you meet your higher self? Probably by practicing meditation, by being in gratitude, being more aware of the situations, being more in alignment of your allowing things to flow in your world, more surrender. Surrender is a very powerful exercise to manifest anything. Usually we chase manifestation. True. Manifestation is not something to be chased or run after. It has to beautifully flow in your world. So, Yeah. मेगा मैम, स्पीकिंग ऑफ एनर्जीज, अभी आप एनर्जीज की बात कर रहे थे, तो आप बता सकते हैं लाइक कि हाउ डज एनर्जीज वर्क हियर इन मैनिफेस्टेशन? So, if I talk about energy, जो हमारी thoughts होते हैं, they carry particular vibration. Right. Okay.
जो हमारे इमोशंस होते हैं, दे आर मोर लाइक फ्यूल टू योर वाइब्रेशन, and together when they're clubbed together it becomes a frequency. So when you are manifesting something, your energy has to be aligned, and because universe doesn't have any language, so universe only works on your frequency and vibrations. So if we say we are thinking this, thinking is not going to manifest in your world. Thinking plus fueling your emotions, what are your core beliefs about that manifestation, that brings that's the vibration you're sending, that's a frequency you're sending to the universe. So universe always respond to your frequency, not just your thoughts or actions. True. And also मेगा मैम, यूजुअली व्हाट हैपेंस कि जब भी हम मैनिफेस्ट करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं वो हो ही नहीं पाता है, मतलब जितना भी हम ट्राई कर ले, कोशिश कर ले, वी कैन डू इट, वी कैन डू दिस, वी कैन डू दैट, बट वो हो ही नहीं पाता है. So as you rightly said कि हम कितना भी try कर लें, Yeah. so the moment you put a word try, it's like we're putting something very hard work in it. So manifestation is not about hard work or an effort. Manifestation has to be a flow. Okay, and how you can flow with the manifestation is once you align yourself, again your thoughts, your vibration, your feeling. So अगर मैंने थॉट में सोचा मुझे एक पर्टिकुलर चीज मैनिफेस्ट करनी है अपनी लाइफ में, राइट, बट मेरे थॉट्स, मेरे सबकॉन्शियसली मेरी बिलीफ सिस्टम में है आई एम नॉट इनफ, आई हैव फियर इन माय बिलीफ सिस्टम, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट सक्सेसफुल, I don't deserve money. So these kind of issues, जिसको हम बोलते हैं lack of love, lack है हमारे subconscious में. How will you manifest? So it's not about hard work or it's not about chasing something. It's about being in that vibration, in that frequency. So, I would put it in a very simple way, Niharika. Yeah. Manifestation is not something कि यूनिवर्स आपको देना नहीं चाहता. It's not always universe saying no to you. Probably universe is trying to say not yet. Probably the container is not ready. So, and universe knows best for you. At times people, like I get clients, they say हमें तो ऐसा लगता है universe is trying to punish us. Do you really think universe के पास इतना टाइम है कि वो आपको बैठ के punish करे? So universe is preparing you for that. Universe has something better for you. So, and that's how हमें लगता है हमारी manifestation काम नहीं कर रही है. It's all about your belief system, Niharika. Like for example, if I say I want to manifest 10,000 crores, right? I'm just giving you a vague number. But मेरी अभी current reality में सिर्फ lakhs में I'm working. How will I go to the 10,000 crore? Even I will not believe, and universe will not believe. Because मेरी vibration में वो है नहीं ना. Right? It can be a roadmap. It could be a milestone, right? From lakhs to I can go to 1 crore to probably 5 crores, 5 to 10. तो वो belief system में आएगा, आपके mind को भी believe होगा, yes, I can do this. पर हम सीधा from lakhs to 10,000 crores की बात करेंगे, वो खुद को भी fake लगेगा. And of course, जब अपने belief system में it's sounding like a fake to us, how will universe be believe to you? Because vibration तो frequency तो वही रहेगी ना आपकी, कि no, it's not possible. एक्चुअली मैम यू आर वेरी राइट अबाउट दिस कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम खुद पर ही हमें फेथ नहीं होता, हम बिलीव नहीं कर पाते, राइट? सो आई वांट टू आस्क दिस, लाइक हाउ टू गेट दैट वैलिडेशन विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट. बेसिकली वो वैलिडेशन कैसे मिल सकती है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मतलब तो वो चीज़ हमें कैसे मिल सकती है? But then why do you need an external validation? You can do it. So अगर आपके belief system में these no's are there, like we talked about, I am fearful, I am not enough, I don't deserve money, Yeah. I am not loved. How about you take a small step? हमें ना हर चीज में छोटे छोटे steps लेके start करना चाहिए. So, for example, you can starting with affirmations. जो आपको blocks नजर आ रहे हैं उनकी affirmations करनी शुरू करनी चाहिए. Probably start with 21 days, because ये नहीं कि 2 दिन affirmations किया और you will see the result. No. The 21 days के बाद तो आपके नर्वस सिस्टम को बिलीव होना शुरू होता है कि ओके, यू आर फियरलेस, यू आर सक्सेसफुल, आई एम इनफ, आई एम लव्ड. लाइक सिंपल एफर्मेशंस, बट डू इट रिपीटेडली, सुबह शाम दोनों टाइम. बिकॉज द मॉर्निंग हम जब उठते हैं, वी स्टार्ट विद एफर्मेशंस, वी आर गोइंग टू बिलीव दैट होल डे.
And once you sleep with affirmations, you're going to sleep with that kind of thought. Yaar, yes, I am loved. Yes, I am enough. Right. I am worthy of abundance. So affirmations, start with affirmations, and they work wonders. Yeah. Yeah. So also, Mega ma'am, recently I had watched this video. So basically it was about manifestation. So उसपे मैंने comment देखा था कि basically manifestation is like we are gaslighting ourselves, our mind basically. So अगर हमें basically differentiate करना हो what like manifestation और gaslighting में, so उनमें difference क्या होगा? So manifestation and gaslighting is very drastic conversation. Gaslighting is something which is which you're doing it personally with your partner, or gaslighting with someone around you. Usually people don't want to see their own wounds. अपने wounds नहीं देखना चाहते, and they project their inner wounds on someone else. Like I'll share one thing on मेरे साथ जो हुआ, one of my clients. Sure. They have wounds of their mother wounds. Being a coach, I don't sugarcoat my clients. Okay, being a coach, I'm here to empower you. I'm not here to give you sympathy. I'm here to give you empathy, right? So at times I get clients वो अपने mother wounds मेरे पे project करते हैं, because probably they see authority, they see mother energy in me, but वो अपने mother wounds they start projecting on me, which is okay. We understand this as a coach. We understand, we as a healer we see where the pain is coming from. So then they start gaslighting on me. वो हम पे चिल्लाएंगे, आपको ही गलत बोलेंगे, आप मेरी बात सुनते नहीं हो, या आप ऐसे करते हो, because whatever their mother might have done to them. अब अपनी मम्मी को तो वो कुछ नहीं बोल सकते, but they have paid me, so they gaslight on me. So that's how gaslighting is. In this case, if you talk about why manifestation doesn't work here, because आपके again I talked about आपके wounds heal नहीं हुए हैं. Probably whatever energy, because mother is a very feminine energy. If they're trying to manifest something which is in a feminine area, तो उनके वो wounds, it's like हमारे ना बहुत subconscious में होता है ये सब कुछ निहारिका. और हमें, and I have clients जो पहले denial में रहते हैं, which is okay, which is very natural. Like मैं भी denial में थी when I started. मेरी तो जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा है. Why do I need these kind of things? But the point is, जब हम gaslight कर रहे होते हैं दूसरे को, so कहीं ना कहीं हमारे वो wounds heal नहीं हुए हुए होते हैं. And अगर हमारी manifestation में certain people are involved, then it doesn't work, because we have to heal, and then manifestation will start working in your world. Okay. Yeah. एंड मैम अगर हम स्पिरिचुअल ब्लॉक्स के बारे में बात करें, सो बेसिकली ये जो ब्लॉक्स होता है ये हमारी मैनिफेस्टेशन को कैसे रोक सकते हैं, या बता सकते हैं? जो भी ब्लॉक्स होते हैं, लाइक अभी मैंने बोला आपके जो पास्ट ट्रॉमास होते हैं, हमारे अनहील्ड वुंड्स होते हैं, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, उसके बेस पे हमारे ब्रेन में स्टोरीज होती हैं. पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस्ड पे हमारे जो कोर बिलीव्स होते हैं, वो ब्लॉक्स होते हैं. थर्ड, हम ना कभी कभी सरेंडर नहीं करते हैं. वी डोंट नो हाउ टू सरेंडर. वी डोंट अलाउ टू थिंग्स टू हैपन इन आवर वर्ल्ड. और जब हम किसी चीज को अलाउ या सरेंडर नहीं करते हैं ना, तो रेजिस्टेंस आता है. सो इट्स लाइक आप रेत लेते हो, आप उसको हाथ में जितना टाइट पकड़ोगे कि यार मेरे को इसको बचा के रखना है, वो उतना तेज फिसलती है. सेम वे मैनिफेस्टेशन में भी ना, इन स्पिरिचुअलिटी दीज एरियाज, लाइक आई मेंशन दीज 3 areas, they are the biggest blocks. That's why manifestation is not working. One more big thing is there, हमारा ego. यार ये तो मैं कर ही लूंगा, ये तो मेरे बाएं हाथ तक खेल है. Are you operating from ego? How about you operate from a space of abundance, from a space of like, selfless, being selfless? I'm not saying selfish होना गलत है, but अगर आप selfish होके किसी को harm कर रहे हो, then that's not okay. True. So these are like major spiritual blocks which I say कि आपके manifestation को रोकते हैं. एंड मैम अगर हम मैनिफेस्टेशन के अलावा एक और ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करें, सो दैट इज रिलेशनशिप. आजकल लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इसके बारे में. सो बेसिकली मेरे को मैनिफेस्टेशन को इंटर रिलेट करके क्वेश्चन पूछना था कि मैनिफेस्टेशन के थ्रू बेसिकली हम मतलब एक सर्टन टाइप ऑफ रिलेशनशिप या फिर कोई एक सर्टन पार्टनर उसे अचीव कर सकते हैं. So हम उसे अचीव नहीं कर सकते. We can fall for that relationship. निहारिका, हर रिलेशनशिप को आप मैनिफेस्ट तभी कर सकते हो. हम एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं. हाउ अबाउट
we start feeling कि हम उस relationship से चाहिए क्या, what feeling are we looking for from that relationship. हमें वो चीज करना चाहिए rather than a person. And again, it's a soul alignment. अगर आपकी soul का contract उनके साथ है, that person will really fall for you. So again, हमारे thoughts, intention, feelings are properly aligning with that soul's हम इसको soul contract बोलते हैं. So अगर उस soul से मेरे उस soul का contract अगर लिखा है, and if I'm aligning with that soul's energy, then definitely you can manifest that person in your world. But हम लोग usually ना operate करते हैं अपने fear से, lack of love से, trust issues, controlling, dominating, all these factors जब हमारे अंदर होते हैं ना, so that relationship अगर वो align नहीं है, that will never come in your vibration, in your frequency. Right. So you have to be really aligned to your thoughts and feelings and intention to manifest a particular partner. राइट. सो मैम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन के दिमाग में कोई नेगेटिव माइंडसेट है, सो अगर तब उस टाइम पे वो मैनिफेस्ट कर रहा है, तो वो मतलब नेगेटिव वे में, यानी कि जो मैनिफेस्टेशन है वो नेगेटिवली वर्क कर सकती है, ऐसा भी हो सकता है. So negative आपने पहले ही बोल दिया negative है. So कोई चीज negative है वो manifest कैसे हो जाएगी? So universe will never punish you. So अगर आप सोचो मैं कुछ negative सोच रहा हूँ and that is working, so again it's situational. अगर उस negative belief का आपका thought बहुत strong है and आप उसको fuel दे रहे हो, तो definitely होगा. कई बार सुना है बोलते हैं, किसी को बोलते हैं यार तू ऐसा मत कर and तेरे साथ ये हो जाएगा, और actually वो हो जाता है. वो इसलिए नहीं होता कि किसी और ने आपको बोला, वो इसलिए हुआ बिकॉज आपकी थॉट और वाइब्रेशन उसके साथ अलाइन हो गई. सो इट कुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव. आपके थॉट और आपका जो आपका इंटेंशन में भी नहीं होगा, बट आपका थॉट और इमोशन दोनों जब उससे अलाइन हो गया, इट विल मैनिफेस्ट. सो मेगा मैम, जैसे कि पहले हम रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे थे, सो इसी से मेरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि रिलेशनशिप में एक पैटर्न होता है जो कि वही मतलब चलता ही जाता है फ्लो में, उसे हम चेंज नहीं कर पाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी कभी लाइफ में हमारे टॉक्सिक पीपल आते हैं, तो ऐसा होता है कि वो चला गया, फिर दोबारा वही उसी टाइप का पर्सन आ गया, तो उस पैटर्न से हम कैसे निकल सकते हैं बेसिकली? सो वेरी गुड क्वेश्चन निहारिका. It's not about being people toxic. It's very easy to blame someone else. हम अपने ऊपर जब काम नहीं करना चाहते हैं, हम तो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं. सो ऐसा क्यों हो रहा है कि आप ही के वर्ल्ड में सारे टॉक्सिक आ रहे हैं, किसी और के वर्ल्ड में क्यों नहीं जा रहे? राइट. सो इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट मी. हमारे बारे में है ये. सो मैं एक बहुत सिंपल फ्रेम करती हूँ इस चीज को. फॉर एग्जाम्पल, आप पार्टनर पे पार्टनर चेंज कर रहे हो और स्टोरी रिपीट सेम हो रही है. अब पार्टनर आपने चेंज किया, अब ऐसा तो नहीं कि सारे ही टॉक्सिक हैं, राइट? ट्रू. सो टू फ्रेम इट इन एग्जाम्पल, इट्स लाइक मूवी. आपने एक मूवी का स्क्रिप्ट लिखा विच इज वेरी पेनफुल, विच यू आर नॉट लाइकिंग इट, विच इज नॉट फिटिंग इन योर वर्ल्ड. ओके, आपको उसको देख के दुख हो रहा है. अब आप कह रहे हो मुझे ना इसमें ये कैरेक्टर्स चेंज कर दो, तो आपने उसमें कैरेक्टर्स चेंज कर दिए. Now again you're watching that movie, but मूवी का आउटकम फिर सेम आ रहा है, पेनफुल है ही है, because you're just changing the character, you're not changing the movie script. आपको कैरेक्टर चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको एक्टर नहीं चेंज करना. आपको अपनी मूवी की स्क्रिप्ट रोमांटिक करनी है, आपको मूवी की स्क्रिप्ट लवेबल करनी है, आपको अपनी मूवी की स्क्रिप्ट चेंज करनी है. सो द मोमेंट यू आर गोइंग टू चेंज द स्क्रिप्ट ऑफ योर मूवी, आप वही कैरेक्टर्स वापस ले आओ. They are going to perform. So it's not about them, it's always about us. कि मेरे स्क्रिप्ट में ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज मैंने स्क्रिप्ट लिखा है. सो चेंज योर स्क्रिप्ट एंड कीप द सेम एक्टर्स, यू विल गेट अ ब्यूटिफुल रिजल्ट. श्योर मैम. एंड मैम, इसी से एक और क्वेश्चन आता है कि क्या होता है कि अगर ऐसा भी हो कि मतलब रिलेशनशिप जो है अच्छा चल रहा है काफ़ी, तो बट फॉर सम रीज़न कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि मतलब वो हम मेंटेन नहीं कर सकते रिलेशनशिप. सो बेसिकली उस चीज़ को, उस रिलेशनशिप से हम मूव ऑन कैसे कर सकते हैं? मतलब हाउ टू लेट गो ऑफ समथिंग और समवन, सो वो कैसे कर सकते हैं? बिकॉज ये आजकल लोगों के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, सबको बहुत दिक्कतें होती हैं. सो अगेन इट डिपेंड, इट्स वेरी सिचुएशनल निहारिका. Being a life coach and being a therapist
we never ask any couple if they're married to please break your relationship, work on yourself. हमारी लाइफ में कोई भी एक पार्टनर आता है वो आपको कुछ सिखाने के लिए आता है. पॉइंट इज वी डोंट वांट टू लर्न आवर लेसन्स. हम डिवोर्स की तरफ जाते हैं या किसी और चीज की तरफ जाते हैं बिकॉज वी वांट टू एस्केप द सिचुएशन. हम उस सिचुएशन को जीना नहीं चाहते हैं. हाउ अबाउट अगर कल को कोई और आएगा वो भी ऐसा बिहेव करेगा, फिर क्या करोगे आप? So it's not about them, like I said in your previous question. Yeah. It's about you yourself. Now the second situation, as you said, ki how can we let go? So once it has to be soul's choice. If you learned your lesson, so relationship को spiritually अगर हम ये बोलना चाहें कि Yeah. जाने दें, letting go करके if you're at peace, then it's absolutely okay. But let go करके you're still in pain, then you need to learn your lessons. Because that pain is going to keep repeating. Right. It's something which is very deep rooted. आपने रूट तो ठीक किया ही नहीं ना, तो फ्रूट कैसे ठीक होएगा? True. So you have to work on the roots. The fruits are going to be wonderful. एंड अक्सर मैम हम लोगों से ये सुनते हैं कि बेसिकली रिलेशनशिप जो होता है वो स्टेबिलिटी के लिए होता है, कि एक हमें इमोशनल डिपेंडेंसी मिल रही होती है. सो मैम मेरे को इसमें आपका पर्सपेक्टिव जानना है बेसिकली कि व्हाट डू यू थिंक कि रिलेशनशिप हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, कि इन फ्यूचर जो हमें स्टेबिलिटी चाहिए होती है वो मतलब हम खुद नहीं कर सकते, अपने लिए खुद नहीं ला सकते. So you can bring in stability in your relationships. Point is, are you ready for it? हम ना इमोशनल डिपेंडेंसी में चले जाते हैं. इट इज़ वेरी डिपेंडेंट थिंग. वाई पीपल से कि हम बहुत प्यार में हैं, स्टिल द रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग. राइट. बिकॉज लव इज नॉट ऑल अबाउट बीइंग इन अ रिलेशनशिप. लव के साथ साथ यू नीड टू गिव रिस्पेक्ट टू ईच अदर. एंड हमारे ना पास्ट वुंड्स अगेन बार बार आते हैं. अगर आपके वुंड में रिलेशनशिप का फियर है, आपने अपने पेरेंट्स की मैरिज देखी, इट डिडंट वर्क आउट फॉर यू एज अ चाइल्ड यू आर ऑब्जर्विंग ऑल ऑफ दैट. सो जब आपकी ऑब्जर्वेशन में वो है, आपके बिलीफ सिस्टम कोर बिलीफ में वो चला गया, दैट रिलेशनशिप डजंट वर्क. सो यू रियली नीड टू गो एंड इवैल्यूएट योर फीलिंग्स एंड थॉट्स कि व्हाई आई डोंट वांट टू बी इन अ सर्टेन रिलेशनशिप. इट्स नॉट सेइंग कि रिलेशनशिप में होना अच्छा है या रिलेशनशिप में नहीं होना अच्छा है. इट्स पर्सनल चॉइस अगेन. बट चॉइस किस थॉट से आ रही है? अगर वो थॉट यही है कि माय पेरेंट्स की शादी नहीं चली तो मेरी नहीं चलेगी, देन यू नीड टू वर्क ऑन दैट. अगर आपका सोल चॉइस यही है कि नहीं यार, आई वांट टू बी फ्री, एंड आपको लगता है इट इज कमिंग फ्रॉम योर सोल्स विल दैट यू डोंट वांट टू बी एनी रिलेशनशिप एंड यू आर इनफ, देन डेफिनेटली द अकेला बंदा भी पूरी जिंदगी निकाल सकता है. ऐसा नहीं है दैट यू नीड समवन टू बी देयर. और जब हम इस रेल्म में आए हैं ना निहारिका, इन दिस फिजिकल रियलिटी, हर किसी को एक बिलोंगिंगनेस की जरूरत होती है. दैट पैम्पर, दैट लव, दैट केयर. एंड आई थिंक वो लव से ज्यादा ना वी नीड दैट अनकंडीशनल लव. हम लोगों ने ना अपने लव में बहुत कंडीशंस लगा दी हैं. दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ दोज कंडीशंस रिलेशनशिप सस्टेन नहीं कर रहे हैं. हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है. हर किसी को वो मूवी वाला लव चाहिए, which is not possible. मूवी में बस वहीं तक दिखाते हैं प्यार हुआ, शादी होगी, खत्म. उसके बाद क्या होता है वो तो कभी दिखाया ही नहीं. So you really need to work on your wounds, your inner world, what your inner world wants, and the relationship again it's a personal choice. सो मेगा मैम, जैसे कि अभी हम पहले पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे थे, राइट? तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी मतलब जिन लोगों को हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं तो बेसिकली यही होता है कि मतलब बेसिकली उनसे हमें कोई लेसन मिल सके, तो हमेशा ऐसा ही होता है. That's right. आपकी लाइफ में जो भी आ रहा है, they are going to teach you some lessons. एंड ये ना सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं हम इसको, विच इज अ सोल एग्रीमेंट, जो इस यहाँ नहीं होता, नॉट दिस इन फिजिकल रियलिटी. ये पहले से होकर आया हुआ होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट. दैट्स व्हाई यू अट्रैक्ट दैट पार्टनर इन योर वर्ल्ड. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट पार्टनर, योर कार्मिक रिलेशनशिप, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर्स, आपके सिबलिंग्स, आपके इन लॉज, आपका खुद का लाइफ पार्टनर, योर किड्स, everyone is, it's a soul contract. And आप देखोगे ना, every day someone is teaching you something. And सबसे ज्यादा कौन सिखाता है आपको, जिससे सबसे ज्यादा आपको ट्रिगर्स हो रहे हैं. If someone is triggering in your world, that clearly means वो आपकी layers पे layers, that person is trying to heal you more. और आप जितना अपने triggers पे, जितना अपने उस पे काम करोगे, you're going to be a more and more better person. Because
एक ग्रे लेयर्स दैट यू ट्राइंग टू रिमूव मैटर, बिकॉज हमारे ट्रिगर्स आर हैपनिंग बिकॉज मेरी कंडीशनिंग की वजह से. Probably there could be something which is positive in my world, it could be negative in your world. हर कोई अपने लेंस से देखना चाहता है. मैं अगर इसको स्पिरिचुअल लेंस से देखूं, so every karmic contract you have, every karmic souls you have, they are teaching you something. You need to probably, अगर if I talk about few relationships, like अगर husband और wife में कोई conflict है related to money, probably they're trying to teach you how to heal your money wounds. अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है, प्रॉब्ली मदर इन लॉ और ऐसे डॉटर इन लॉ का कोई रिलेशनशिप में इशू है, प्रॉब्ली दे आर ट्राइंग टू टीच यू हाउ टू बी पेशेंस. प्रॉब्ली दे आर टीचिंग यू हाउ टू बी इन लव विद देम. दे आर टीचिंग यू मोर लव लैंग्वेज. हम लाइक वी टॉक्ड अबाउट अनकंडीशनल लव. व्हेन देयर इज नो कंडीशन इन लव, हम लोग ना हर चीज को डोमिनेट करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, विद ईगो, विद फियर, विद लॉट ऑफ अदर थिंग्स. But how about be unconditional? Just let the flow happen. And जो जैसा है, accepting that person, that your karmic group, अब देखना इतना ब्यूटीफुल हो जाएगा सब कुछ. एंड जैसे कि मैम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक रिलेशनशिप है, वो काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है, बट इसमें एक चीज़ ये आती है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक पार्टनर बोल रहा है कि आई कांट लिव विदाउट यू. मतलब मैं प्यार बहुत करता हूँ, केयर तुम्हारी बहुत करता हूँ, बट स्टिल एक जैसे कि अभी आप डोमिनेटिंग की बात कर रहे थे कि बेसिकली डिपेंडेंट हो जाता है दूसरा. तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ सही है कि हम ऐसे ऐसे फ्रेजेस यूज कर रहे हैं, तो एक तरीके से वो इमोशनल बर्डन दूसरे इंसान पर भी चला जाता है, राइट? तो वो चीज़ आपको क्या लगती है, वो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? So I will again not say होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए. It is someone, the person has to decide वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए. अगर वो टोटल अनकंडीशनल लव से आ रहा है तो क्यों नहीं होना चाहिए? I can make that person feel how much I am into you, right? आप एक को फीलिंग दे सकते हो कि यार there is someone for you, बट अगर उस वो पैटर्न आपका इसकी वजह से आ रहा है कि आपको लगता है you're not worthy of love, now you're depending on love on someone else. Like we become beggar, प्यार दे दो. It's not, you can't be a beggar. So अगर वो लव, अगेन यू हैव टू चेक योर एनर्जी. अपना एनर्जी मीटर चेक करने की जरूरत होती है कि वो मेरा लव जो आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है. कभी कभी हम बहुत क्लिंगी हो जाते हैं रिलेशनशिप्स में. बहुत डोमिनेटिंग इज डिफरेंट फैक्टर. बीइंग क्लिंगिंग, नॉट गिविंग दैट पर्सन स्पेस, तो वो हमारे वूंड्स हैं. वी नीड टू हील दैट. एंड अगर मैं आपने एक लाइन और कुछ बोला था अभी, सी रिलेशनशिप बर्डन हो जाएगा. यस. सो जो एक ब्लेसिंग होनी चाहिए थी रिलेशनशिप, it becomes burden because you're not giving that person space. You're being very clingy, like, and clingy is not a healthy relationship. Right. अगर आपको love है, you need to trust that relationship. Trust has to be there. Respect is also one of the biggest factor. At times हम love के चक्कर में we don't respect our partners. Yeah. I have seen so many clients coming. I know this person loves me, but I don't see respect in my relationship. One of the biggest respect is also a biggest challenge in a relationship, and it converts into burden later on. एंड मैम स्पीकिंग ऑफ ट्रस्ट, जैसे कि भी आप बात कर रहे हो कि बेसिकली पार्टनर में ट्रस्ट होना चाहिए. सो हम ये देखते हैं कि आजकल पार्टनर्स में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, ट्रस्ट कर ही नहीं पाते हैं चाह कर भी. वो मतलब कहीं ना कहीं रहता है कि मतलब कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है, सारे क्वेश्चंस होते हैं. तो बेसिकली वो इनसिक्योरिटी को दूर कैसे कर सके आप? सो इनसिक्योरिटी को दूर कैसे कर सकते हैं? हम बार बार वहीं जाएंगे. कहीं ना कहीं वो आपके चाइल्डहुड से आ रहा है. यू हैव बीन, और हमारी ना इनसिक्योरिटी इज नॉट जस्ट अबाउट रिलेशनशिप. अगर हमारा कोई एक पैटर्न होता है ना, वो हमारे 3 एरियाज हमारी लाइफ के होते हैं: रिलेशनशिप्स, मनी एंड हेल्थ. आप देखोगे हमें तीनों एरियाज में इनसिक्योरिटी हो रही होगी. इट्स नॉट जस्ट रिलेशनशिप. आपको रिलेशनशिप से इनसिक्योरिटी होगी, आपको पैसों से भी इनसिक्योरिटी होगी. एज मच एज आप बोलोगे आई वॉन्ट मनी, बट इंटरनल fear would be, am I worthy of money? Am I worthy of abundance? So, and हमारी हेल्थ, जो हम अपनी लाइफ में अपने घर में किसी को देखते हैं, अगर किसी को कैंसर हो गया है, किसी को हार्ट अटैक, ओ यार मुझे तो नहीं हो जाएगा. दिस इज व्हाट, दिस इज इनसिक्योरिटी. सो हमारे तीनों एरियाज में वो रिफ्लेक्ट होगा. इट्स नॉट गोइंग टू बी जस्ट रिलेशनशिप, बट बिकॉज हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, सो हाउ कैन वी हील इट? आपको सबसे पहले तो फिगर आउट करना होगा, क्वेश्चन योरसेल्फ, ये इनसिक्योरिटी आ कहाँ से रही है.
Have I observed this? Have I observed my parents being insecure? मेरे पेरेंट्स का रिलेशनशिप ठीक नहीं था, या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का ठीक नहीं था, या मेरी सराउंडिंग्स में मैंने रिलेशनशिप्स ठीक नहीं देखे हैं. आप क्या करते हो? यू स्टार्ट थिंकिंग इन दैट वे. Yeah. So I'll give you a very small example. I have this client. Yeah. She saw her parents' marriage was not working in her world. Though they are together, the parents are together, but Yeah. पहले के time में divorces were not okay in our Indian society, if I talk about. Right. तो उन्होंने कभी divorce नहीं किया, but they stayed together, but it was not a healthy relationship. Then she saw her sister getting divorced. Then finally she decided that मैं divorce नहीं करूँगी when I get married. I will see whatever has happened. But eventually she also manifested divorce in her world. Why? Because patterns तो वही है ना जो उसने बचपन से observe करे हैं. Though she keep manifesting कि मैं divorce नहीं करूँगी. But होता क्या है? We end up doing it. हम खुद ही उस relationship को हटाना शुरू कर देते हैं vibrationally. मैं बोल तो रही हूँ in my thoughts कि मुझे नहीं चाहिए, but my vibration is insecurity, fear, डर. तो वो अगर वो relationship नहीं भी टूटना चाहता हो, you behave in certain way कि eventually वो relationship टूट जाता है. Right. So that's how your insecurities and fears work in relationship. So Megha ma'am, speaking of relationships, इसमें एक और सिनेरियो आता है. I'm sorry मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ भाई क्वेश्चन पूछ से, बट बेसिकली ऑडियंस के भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, सो वी नीड टू एड्रेस दैट. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस कि अगर जैसे कि रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा है और उसमें क्या होता है कि शादी भी हो गई, सारी चीज़ें हो रही है जो आपने मतलब डिज़ायर करी थी, बट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक घर में रह रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे इन लॉज भी होंगे, पेरेंट्स भी होंगे, तो उनसे हम कैसे डील कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि वो हमें सपोर्ट नहीं कर पाता है फॉर सम रीज़न, जो भी रीज़न हो सकता है. तो उनसे मतलब हम कैसे डील कर सकते हैं या फिर उनसे कैसे ना चाहकर भी एग्री कर सकते हैं, तो वो चीज़ कैसे होती है? So firstly, since you said शादी हो गई है and now the girl has, if I take it, are you saying that girl comes to the house and she's not able to deal it? Is that correct if I'm getting it? Right. Right. She's not able to deal it because she has her own experiences in her life. उसके अपने patterns हैं, अपना घर का lifestyle रहा है उसका, right? Now that one person comes and thinks that मेरे हिसाब से सब कुछ हो, that is not possible. अगर हम इस दुनिया में आए, we came here to be existence with co-creation. हम लोग ना दिखाते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया उनके लिए, still I'm in pain. Are you doing it with full emotion, with intention? हम एक्शन में करते हैं चीजें, इंटेंशनली नहीं करते हैं. बस इतने केसेस आते हैं, "यार, मैं तो ये करती हूँ." आप एक्शन में कर रहे हो ना, पर मन में तो कुड़कुड़ चल रही है. वी कॉल इट कुड़कुड़, दैट लिटिल वॉइस इन आवर हार्ट, यार मैं तो ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, सब कुछ मैं करूँ. बिकॉज हमारे मनों में सेपरेशन है. वी सी देम एज इन लॉज. विल यू डू द सेम टू योर ओन पेरेंट्स? नेवर. Then why you treat them as, their in-laws? Why can't you see them as your husband's parents? Why can't you see them as your own parents? If you can't do the same thing to your parents, you are not allowed to do to your in-laws. And I agree, कई बार लोग बोलते हैं हमारे in-laws ने ऐसा किया, ये वो. If they are, again, it's a karmic script. पूरा scripted होता है karmic. How much patience you have, how fearless you are, how much love you're pouring in that relationship. See, ultimately, it's like watering a plant. आप कितने कौन से पौधे को पानी दे रहे हो? One is positive, one is negative. आपकी choice, आप कौन से पौधे को पानी दे रहे हो, वही grow होगा. So same way, if you are pouring love in one relationship, unconditional love, right? So क्यों नहीं होगा वो flourish? It will flourish. Points is हमें अपनी roots ठीक करने की जरूरत है. Because if I see, हमेशा ये सुना होगा मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ में प्रॉब्लम होती है. कभी सुना फादर इन लॉ में प्रॉब्लम होती है? Why? Because हमारे बिलीफ सिस्टम में बिठा दिया है. सास बहू मतलब सुनते ही आ रहे हैं, सास बहू. Why it's never ससुर बहू, or why it's never ससुर दमाद? So it's again in your core belief में डाल दिया, सास बहू की कभी बनती नहीं है. And I have so many people, बहुत अच्छी बन रही होती है, सबकी बन रही होती है. It's all about how you see. Again, आपका लेंस, आपका फिल्टर क्या है. अगर निहारिका ये पेड़ तो बहुत ग्रीन है,
पर आपकी तरफ से तो ब्लू दिख रहा है बिकॉज आपकी तरफ ब्लू है। तो मैं कहूँगी नहीं निहारिका दिस इज ग्रीन, आप कहोगे नहीं मैम दिस इज ब्लू, क्योंकि बस फिल्टर आपका ब्लू है ना, आपने चश्मा ही ब्लू पहना हुआ है, मुझे ग्रीन दिख रहा है क्योंकि मेरे लेंस से तो ग्रीन ही दिख रहा है। दैट्स हाउ रिलेशनशिप्स आल्सो वर्क, यू नीड टू चेंज योर फिल्टर। So, Megha ma'am, lastly, I want to ask this कि अगर आप रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज दे सको बेसिकली, क्योंकि उनने बहुत ज्यादा सुनना है उनको। So what message I want to give to your audience is that don't let go of your relationship that easy. Until unless it's a very abusive relationship, we understand. Try to work on your relationship. हर चीज फिक्स हो सकती है, हर चीज रिपेयरेबल है, यू कैन चेंज इट। हम हर चीज चेंज नहीं कर सकते हैं। आज आप चेंज भी कर लोगे, कल को कोई आएगा, अगर आपकी चीजें ठीक नहीं हुई है, आपकी तरफ से चीज ठीक नहीं है, आप कब तक चेंज करते रहोगे? यू जस्ट कांट। हम लोग ना एस्केप करते हैं सिचुएशन से, हर चीज से ये नहीं तो ये कर लेते, ये नहीं तो ये। हाउ अबाउट लिविंग इन दैट रिलेशनशिप, एक्सेप्टिंग थिंग्स एंड देन मूव फॉरवर्ड? Until unless it's very abusive, understandable, but I would say work on your relationships. Stop blaming people कि उसकी वजह से ये हो रहा है. See where you have to work on yourself, learn your lessons, and then move on. Thank you so much for watching the podcast. And if any one of you could relate to what we said and the energy resonates with you, you can reach out to us on the given numbers on the screen. We can have a one-on-one conversation, one-on-one counseling. We do even have a journey of 1 year where we take 2 retreats. We're going to help you work on your old patterns, your inner child work, your shadow work, your karmic patterns, and maybe you can become a beautiful person. And we do even do sound healing, personalized sound healing, and even sound baths. We are coming up with sound baths and ice baths. You can reach out to us on the given numbers, and you can follow us on Instagram and Facebook and YouTube. Thank you very much.